Okay, today we are going to start with our next topic of radical expression, class 9 metric. Okay. In radical expression, we can simply say here that radical expression should be taken whenever we say that we are having uh, a number in under root and also having a number outside this. For example, let he is saying here if n is a positive integer greater than 1, then a is a real number, and then any real number x such that uh, n under root a, then nth power is the root of a over there. Nth power, what is meant of that? X is equal to a with under root n. What is its mean? X is equal to a power 1 over n there. So if I go with it, then I can simply say here that it is going to show that a is inside the square root, then this is called a radicand. And the number which is having this square root sign, this square root sign is called radical over there. And this is the index notation of 1 by n over there, where we can say under root is called radical sign, n is called index. This n is, which is coming here 1 by n is index of radical, the radical over there. And if I take n is the index of radical, then I will say here what is about a, what is about x, then x is a real number over there, and anything which is inside this under root sign over there a, then a is called radicand over there. So that radicand, I will say here that radicand means anything which is inside the square root or inside the power of whole 1 over that power. For example, he is giving me 3 under root with power, not should be 2 there. 2 is already given by this sign that it is 1 by 2 square root with the power. He is writing, for example, here 5. Then this will equal to 3 power 1 over 5 there. Should be taken into account. Laws of radical power over there, whenever the whole powers are given and two numbers are being multiplied over there, then I will say, for example, according to first law as he has written for me, then he is saying that if I am giving the n power with a b over there, when I will expand it, then I will say n with a, then I will say n with b also. After that, I will say here n whole power m is going to become under root n, and m can come out over there because it is not under the power and it should be in the numerator if I want to take into the fraction over there. And from here it is whole power n, then n is coming out to cancel out its effect, like it is written in this form. I'm saying here that it is written in this form like uh, n under root n, then I will write it n whole power 1 by n. If it is written x power n with radicand n, then I will say it is coming as x power n over n. They are cancelling out, giving me x power 1, which can be written as x is equal to this. If I go for power rules, for example, if two numbers are being multiplied and having power m and n, when I will join them, then I will write this power m plus n. If two numbers are divided over there, then I will say they are going to be writing as a power m minus n. And if I am saying they are having the power a power m whole power n over there, then I will say they are going to take power a power m n. So according to all of these three laws, we will use to multiply the index notation over there. एंड इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो किसी भी नंबर का अगर पावर हमारे पास उसके बराबर है जीरो के, जैसे मैं एक्स की पावर जीरो करता हूं तो वो भी वन है, अगर मैं 1000 की पावर जीरो करता हूं तो वो भी वन है। किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो हो या किसी नंबर की पावर जीरो हो तो वो हमारे पास वन के ही बराबर आती है। हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उस पे देखते हैं ये क्या कह रहा है यहाँ पे। तो next page is not going to be in the proper sequence. Okay, I'm saying here
Okay, this is our page number 12 over there now, which is shown over here. Here he is saying to use these laws little bit over there. How should we go with them? Okay, I'm zooming in a little bit. It is zooming in, zooming out. I will have to go so that it can be more clarified. Examples should be done. Like he has taken its 4 value as 1 by 4 and then arranging and multiplying all of these values, and he is simplifying using these laws over there. He is going to, let's suppose I'm taking this example over here, and let's go according to this example. For example, he is saying 64 over there. We know 4 power 4, 4 over there. Then it will be 4 multiply 4 multiply 4 is equal to 4 power 3. It means 64 whole power 4 by 3 with minus sign is to be taken as 4 power 3 whole power minus 4 by 3. This 3 is cancelled out. Now he is saying go with the power 4 over there, but 4 power minus 4. If I'm going to make it positive, I will write it 4 power 4 with the positive sign from the numerator to take into denominator over there. अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले रहे हैं तो 1/256 की फॉर्म में हम इसको ले लेंगे। इस तरह से इन पावर्स के साथ हम मैनिपुलेशन करेंगे। और जैसे उस इससे पीछे वाली अगर एग्जांपल आप देखते हैं तो इस एग्जांपल में उसने 27x पावर 6 y पावर 9 z पावर 3 करके दिया है। तो रेडिकल के बाहर जो इंडेक्स नोटेशन है उसको आप 1/3 की फॉर्म में अगर ले लें तो 27 को भी आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये इसके साथ भी 1/3 आ जाएगा, x की पावर 6 के साथ भी 1/3 आ जाएगा, y की पावर 9 के साथ भी 1/3 आ जाएगा, और z की पावर 3 के साथ भी 1/3 आ जाएगा। अगर आप कैंसल आउट की तरफ जाएं तो 3 3 कैंसिल, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 कैंसिल, तो पीछे जो चीज बचेगी 3x² y y पावर 3 z पावर 1 ओवर देयर। तो इस तरह से ये नोटेशन फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मजीद हम इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट सेक्शन दिखा रहा है, नेक्स्ट सेक्शन में ये कहता है कि आपके पास सर्ड्स और उनके एप्लीकेशंस के ऊपर बात कर लें। तो सर्ड की मैं अगर बात करूं तो अंडर रूट के नीचे जब तक रहेगा वो सर्ड के अंदर रैशनल नंबर होना चाहिए, कभी भी इरैशनल नंबर नहीं होगा। एवरी सर्ड इज एन इरैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट सर्ड। जैसे उसने एग्जांपल की कि पाई इज नॉट अ सर्ड, सो इट कैन बी एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू past papers in the form of MCQs questions over there that under root pi जो है वो सर्ड में नहीं आता है। उसके अलावा इर्रेशनल नंबर कभी वो सर्ड बन सकते हैं, कभी वो सर्ड नहीं बनते हैं। तो उस चीज को भी हम देखते हैं। अंडर रूट के नीचे जब तो नंबर आ रहा है तो उसको हम सर्ड की नोटेशन में कहते हैं। और एन इर्रेशनल रेडिकल with the rational radicand is called surd over there। तो ये एक definition है surd की। An irrational radical like you are taking in case of prime number and like that, like under root 2, under root 3. When I explained about irrational numbers, I also given you this example over there कि जब हम प्राइम नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर ले लेते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाता है। तो एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड ओवर देयर। सो ओवरऑल 2 और 3 जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। इनको हम 2/1 करके लिख सकते हैं, 3/1 करके लिख सकते हैं। तो ये रैशनल रेडिकेंड है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है इसको रैशनल रेडिकेंड, और जो स्क्वायर रूट लेने के बाद वो इर्रेशनल बन जाए तो इस ऐसे नंबर्स को हम सर्ड्स नोटेशन में लेते हैं। और इनको सॉल्व आउट करने के लिए अगर हम चलें तो यहाँ पे उसने हमें कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स देने की कोशिश की है, जिनको अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे रैशनलाइज वाला मेथड आएगा जो हमें टेक इनटू अकाउंट लेना है।
लेटर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के एग्जांपल्स कर लेंगे। A surd that contains a single term is called monomial surd, single term. If it is having two terms over there, it is called binomial. And अगर हम दोनों सर्ड का साइन चेंज कर दें तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स में लिए जाएंगे। उसके बाद आगे जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि इनको रैशनलाइज करें। तो रैशनलाइज करने में मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर लो √5, लेकिन साइन चेंज कर दो दरमियान में, और इधर भी √5 माइनस √2 कर लो। बाकी सिंप्लीफिकेशन का लॉ जो अलजबरा के मुताबिक है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, और उसके मुताबिक अगर हम करें तो नीचे हमारे पास जब भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए लिखेंगे, जिसको मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास a+b × a - b लिखा हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ a² - b²। तो रेशनलाइज करने में जब आपने डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हुए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किए नेगेटिव साइंस के साथ, तो नीचे आपके पास a+b a - b डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a² - b² वाला सीन जो है वो हमारे पास सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 - 2 3 के बराबर आ जाएगा। और यही 3 जब आप ऊपर वाले 3 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास एक कॉन्जुगेट फॉर्म आ गई, जो कि आपके पास ओरिजिनल रेशनलाइज्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी स्क्वायर रूट ना बने, उसके लिए हम इसको रैशनलाइज करना सीखते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो सबसे पहले वो कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ओवर द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करते हैं। 13/4 प्लस √3 should be taken for rationalize 4 minus √3/4 minus √3. I now, if I look to the denominator, numerator is still pending over there. I'm not going to disturb it. I'm saying it is 4 minus √3. ये as it is लिख लिया। नीचे जो है 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। उसके बाद 13 × 4 माइनस √3 अगर हम ले लेते हैं ओवर 4² 16 हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल -3 हो जाए तो नीचे ये 13 बनेगा, जो कि बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 माइनस √3 ओवर 13, तो 13 से कैंसिल आउट हो जाए तो 4 माइनस √3 इसका रैशनलाइज करने से, सिंप्लीफाई करने से हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि हम इसको कैसे रैशनलाइज करें, क्योंकि उसने बोला रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर से, तो मैं √3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सिंपल नीचे से स्क्वायर रूट के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। तो इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए मैं सिंपल √3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड करवा रहा हूँ। डिवाइड वाला जो है वो चुप करके मेरे पास 3 आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो है वो √2 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √6, प्लस √3 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा तो √15 बन जाएगा। उसके बाद इसमें भी उसी तरह से है कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √2 से मल्टी और √5 से, और डिवाइड भी कर रहा हूँ √5 से। जब मैंने एक जैसी टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √5 को जब √2 से मल्टीप्लाई किया तो √10 आ गया, माइनस √5 ओवर 5 करके मैं इसको फिनिश आउट कर रहा हूँ। तो इस तरह से रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो पहला सवाल था, वो हमारा क्लियर आउट हो जाता है। उसके बाद नंबर 12 13, ओके आगे मुझे 14 पे जाना है, थोड़ा सा वेट कर लें। 14 11 एंड व्हाट अबाउट दिस पेज नंबर, या ये 14 आ गया है। यही हमारी एक्सरसाइज है जिसके गिर्द हम मेनली घूमेंगे और इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस की अरेंजमेंट बढ़ाने के लिए मैं इसको जूम इन ज़्यादा कर रहा हूँ, ताकि मुझे इस क्वेश्चंस के दरमियान स्पेस मिल जाए। बाकी मैं उसको ताकि मैं उन क्वेश्चंस को कोशिश करूँ कि उसके सामने ही कहीं ना कहीं हल हो जाएं। अब जैसे इस सवाल में दोबारा से वही पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे, तो इसको वो कह रहा है कि रेशनलाइज करें।
तो कर लेते हैं जी, इसको कोई मुश्किल नहीं है। ये याद रखिएगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं वीडियो को तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2 मल्टीप्लाई, मैं नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। 6 - 4 √2 ओवर 6 - 4 √2। अब एक बात याद रखिएगा, ऊपर जो है वो कंप्लीट आइडेंटिटी a - b × a - b, a² - b² बन रहा है। या आप इस 6 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, -4 √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, इट्स अप टू यू, जो मर्जी मेथड आप यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अलजबरा आपसे फेमिलियर नहीं है तो फिर आप इसके लिए टेक्निक यूज कर लें, 6 × 6 - 4 √2, फिर -4 √2 इंटू 6 - 4 √2। अगर तो अलजबरा सही आता है फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा लें, अगर नहीं आता है तो फिर इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करें, जिस तरह से ये 6 पूरी इस टर्म के साथ, फिर -4 √2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें। उसके बाद 6 का स्क्वायर -4 √2 का b² ले लिया जाएगा। अगर मैं इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन को लेकर चलता हूँ तो मैं उस स्टेप को अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, इससे मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, 6 × 6 is 36. After that, 6 into this -24. After that, √2 as it is will be with it. -4 √2 into 66 means 6 into 4, 24. √2. After that, 4 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और 4 × 4 = 16, √2 + 32 आ जाएगा। ओवर 6 का स्क्वायर आ गया 36, -4 का स्क्वायर 16, और 2 से मल्टीप्लाई होके 32। इस तरह से 36 + 32, 36 + 32, 36 36 72 means 68. Okay, 6 to 8 336, 68 - 48 √2 ओवर 4। और अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 4 में अगर कॉमन ले लूं, इंटू 17 - 12 √2 ओवर 4, तो 4 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, और 17 - 12 √2 हमारे पास आंसर के तौर पे आ जाएगा। तो ओवरऑल इसमें हम सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स मैंने चलाए हैं। ये मेरा पहला स्टेप था, ये मेरा दूसरा स्टेप था, ये मेरा तीसरा स्टेप था, ये चौथा स्टेप है, और ये पांचवा, और ये छठा स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप साथ में नोट डाउन करना चाहते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, तो यहाँ पे पास करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। ये थोड़ा इजी लग रहा है तो इसी स्पेस में मैं इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो √3 - √2 ओवर √3 - √2, इन दोनों को अगर आपस में, पहले मैं √3 को इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। √3 जब √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे पता है कि वो 3 के बराबर आया। √3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -√6, -√6, और √2 प्लस माइनस 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 प्लस, √2 2 आ गया, ओवर √3 स्क्वायर -√2 स्क्वायर। अब मुझे पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये नीचे तो 1 बन गया, ऊपर 3 + 2 5 हो गया, 5 -2 √6 ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में आके अब थोड़ा सा हमें √7 और इनको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मल्टीप्लाई √7 -√5 ओवर √7 -√5। ओके, जब इसके साथ 4 को √7 √3 कर रहा हूं तो 4 √21। ओके, 3 7 द 21 इन द रेडिकेंट फॉर्म, रेडिकेंट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो 4 और 3 15, -4 √15 ओवर √7 का स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर ले लिया जाएगा। उसके बाद अब अगर आप इन दोनों को देखें तो 4 में ऊपर से अगर कॉमन ले लूं तो अंदर मेरे पास बनता है अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15 ओवर 7 का स्क्वायर। कैंसल आउट विद दिस 7 माइनस 5 आ गया 2 2 1 द 2 2 द। सो मेरे पास जो आंसर आया है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15 ओवर देयर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। इसमें अब थोड़ा सा पावर्स की मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन चलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना सिंप्लीफाई रख सकूं आपके लिए। 81 को मैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी मैं इसको 3 पावर 4 लिख सकता हूँ। और 16 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करके 2 पावर 4 लिख सकता हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 3 पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4। 4 4 से कट गया, 4 4 से कट गया। अब लेकिन दोनों पे पावर्स -3 आ रहे हैं। -3 को मैं पॉजिटिव अगर बनाने की कोशिश करूं तो मैं इस फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर लूंगा, उल्टा लूंगा। तो मैं इसको 2 की पावर 3 8 ऊपर और 3 की पावर 3 27 नीचे आ जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। आस्ता आस्ता इसको ये कम्प्लेक्स की तरफ लेकर जा रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा जूम इन दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहे उसको टैकल आउट करना। ओके, अब मैं इसको इजीली यहाँ पे हैंडल आउट करने की कोशिश करता हूँ। बस सबसे पहले मैं इसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको इन्वर्ट करूंगा और साथ में स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 का स्क्वायर 9 बनता है और वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 16/9। इसको मैं डिवाइड में, मुझे पता है जब भी डिवाइड में हो तो आगे वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बनाने के लिए मुझे उल्टाना पड़ता है। तो 9 की पावर 3/4 ले लिया मैंने। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा बाद में, उसके देखते हैं 16 डिवाइडेड बाय 27। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, 9 की अगर पावर 3 लिखी हुई है तो एक पावर कम करके यहाँ पावर 2 बना दूं। उसके बाद इसको 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 पावर 2। तो 4 पावर 2 को अगर कैंसिल आउट करके सिंपल एक 4 छोड़ दूं, 4 1 द 4 4 द 9 की पावर 2 मुझे पता है 81 के बराबर होती है। तो 81 मल्टीप्लाई 4/27 अगर लिख दूं तो 27 3 टाइम्स, तो 3 4 टाइम्स मैं इसको 12 बना दूंगा। तो इस सवाल को ओवरऑल कम्प्लेक्स या समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली पहले इस नेगेटिव पावर को सॉल्व आउट किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को उल्टा लिया, 4 ऊपर 3 नीचे, फिर उसका स्क्वायर लिया 16/9 करके। डिवाइड से ये दोबारा उल्टा लिया, 9 की पावर 3 ऊपर और 4 की पावर 3 नीचे ले आए। उसके बाद यहाँ पे आके 16 को 4 की पावर 2 बनाया और उसको 4 की पावर 3 में से माइनस करके एक 4 छोड़ दिया। इस 4 को इस नेक्स्ट वाले 16 के साथ कट आउट किया और सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया। तो इसलिए आप इस सवाल को जितना सिंप्लीफाई रखेंगे इट विल बी गुड फॉर यू। आगे बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये हमारे लिए काफी इजी है, लेकिन इसके लिए पहले टेक्निक क्या अपनाएंगे वो हमें देखना जरूरी है। कि हम इसको टेक्निक ये दे रहे हैं कि ये हमारे पास 27/1000 बन जाए। डेसिमल को खत्म करने के लिए डेसिमल की प्लेस पे 1 लगाया, आगे जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा लिए, -1/3 कर लिया। उसके बाद अब इस माइनस पावर को खत्म करने के लिए इसको उल्टाना पड़ेगा, 1000/27। इस पावर को हमने उल्टा लिया और 1/3 बना लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इस अंदर वाले को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, और नीचे वाले 27 को लिख सकता हूँ 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये और ये कैंसल आउट, ये और ये कैंसल आउट, और मेरे पास आंसर आ गया 10/3 ओवर देयर। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चंस हमें मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 4 में
उसने कुछ इस तरह से फॉर्म दिखाई भी है। तो इसको मैं सॉल्व आउट करने के लिए थोड़ा सा आपके सामने लेता हूँ। अब एक चीज, जब भी 7 बाहर लिखा हुआ है तो ये सबके पावर 1/7 होके सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। यानी x⁴ मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y⁴ मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z⁴ मल्टीप्लाई 1/7 ओवर y⁴ मल्टीप्लाई 1/7 z⁴ 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखते हैं इनको सिंप्लीफाई करके क्या बचता है पीछे। 7 1 7 2 14, 7 1 7 3 उसके बाद 7 1 7 5 7 7 कैंसल आउट, 7 2 14। तो मेरे पास पीछे बच रहा है x² y³ z⁵/y²। और हमारे पास z, एक z को काटा पावर 4 रह गई, y² को काटा पावर 1 रह गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² y एंड z⁴ ओवर देयर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा एन को इन्वॉल्व कर रहा है अपने अंदर। तो इतना इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि उसमें जो एन वेरिएबल आ रहा है वो क्या करेगा। उसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन सबको हम यहाँ पे एक कोशिश करेंगे कि 5 की पावर लेके चलाएं। तो अगर मैं इसके न्यूमरेटर को देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये बन रहा है 5 × 5⁵ होल पावर n+1 -5 पावर 2 डॉट 5 पावर 2n। मैंने 25 की जगह 5 की पावर 2 लिख दिया, ऊपर भी और नीचे भी एक जगह लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, 5 × 5 पावर 2n+3। आगे बढ़ते हैं, -5 पावर 2n, 5 पावर 2 × n+1। अब मैंने सबको 5 का वेरिएबल दे दिया है। इस पावर को बाहर मल्टीप्लाई करवाते हुए 5 की पावर ये है 1, 1 को 5 2n+2, अंदर वाले को अभी नहीं मैं छेड़ता, नेक्स्ट स्टेप में खेल लेता हूँ। 5 की पावर 2n+2 -5 की पावर, अब बेसिस से है मैं पावर्स को ऐड कर दूं सिर्फ, 2n+2 ओवर 5 की पावर, ये 2n+3 लिखा हुआ है तो 2n+4 हो जाएगा। ये 5 की पावर 2n+4, मैंने n यहाँ पे नीचे गलती से एक लिख दिया है, उसको मैं इग्नोर करवा देता हूँ आपको। ये n जो है ये 2n+4 कैसे किया है, 2n+3 तो पहले ही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और ये वाला जो पहला 5 था इसकी पावर 1 को ऐड करवा दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है 5 की पावर 2n+2 -5 की पावर 2n+2। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 5 की पावर 2n+3 +3। अच्छा, बल्कि मुझे इसके लिए 5 की पावर 2n सबके पास जाना चाहिए था, लेकिन चलें नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। -5 की पावर 2n+2 ओवर 5 की पावर 2n+4 -5 की पावर 2n+2। अब अगर आप देखें हर एक के पास 5 की पावर 2n मौजूद है, मैं कॉमन ले रहा हूँ। 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 -5 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2n, दोबारा से कॉमन 5 की पावर 4 -5 की पावर 2। आई थिंक सो अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। इनको मैं कैंसल आउट कर रहा हूँ, पीछे बच गया 125 5 पावर 4 is 625 -25, you are getting here 125 is 100 over 600
and you are getting 1/6. So this is the way how to go with variable. n को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इस सवाल को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना चाहते हैं, ये आपका पहला स्टेप था, ये आपका दूसरा स्टेप, ये आपका तीसरा स्टेप, फिर आपका ये चौथा स्टेप, और ये पांचवा स्टेप, और लास्ट में ये छठा, और एंड पे ये सातवां स्टेप है। और इनको इसी तरतीब में अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। बाकी वीडियो मौजूद है, लेटर ऑन भी देखी जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे उसने अब एक्स के साथ हमें छेड़खानी करने को कहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 16 की पावर, ओके, इट मीन्स 4, 2 इज हेयर, 2 इज हेयर, आई विल हैव टू गो फॉर 2। 2 पावर फॉर्म में मुझे चलाना पड़ेगा। 2 की पावर 4 की होल पावर एक्स प्लस 1 प्लस 20 इंटू 2 पावर 2 की होल पावर 2x, इस फॉर्म में मैंने ले लिया। उसके बाद ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, ऊपर प्लस है नीचे मल्टीप्लाई है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। 2 की पावर 3 होल पावर x प्लस 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो आता है 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x यहां से, और इधर से 3x, टोटल हो गया 4x। अच्छा, 2 की पावर -3 और यहां से 3 to the 6 प्लस 6 -3, तो प्लस का 3 बच गया। अब अगर मैं एक चीज लिखना चाहूं, तो ऊपर मेरे पास 4x यहां भी मौजूद है, यहां भी तो मैं कॉमन ले रहा हूं। 2 की पावर 4x कॉमन लिया 2 की पावर 4 प्लस 20 से, ओवर 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। 4x से कैंसिल। पीछे मेरे पास क्या बच रहा है? पीछे मेरे पास बच रहा है 16 प्लस 20 36 ओवर 8। यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए चाहूं, तो मैं ये कहूंगा कि 9 4 से 4 9 4 द 36 ओवर 2, जिसको आप 4.5 भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको जितना सिंप्लीफाई रखते हैं, अगर आप इसको रिकॉर्ड डाउन करना चाहते हैं, तो स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसको रिकॉर्ड डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये काफी इजी क्वेश्चन है। जस्ट इसमें पावर्स का हमें ख्याल रखना है, और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 64 की पावर -2/3 लिखा हुआ है, तो इसको 1/64 की होल पावर 2/3। आगे मुझे ये डिवाइड साइन अभी रख लेता हूं, बाद में इसको भी मैंने मल्टीप्लाई में लेकर जाना है। तो 1/9 की पावर 3/2। अगले स्टेप पे आते हैं। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ? 64 को मैं यहाँ पे 4 की पावर 3 बना रहा हूँ, यानी 1/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। 1 की पावर 2/3 भी आएगी, लेकिन 1 की कुछ भी पावर हो 1 के ही बराबर होती है, इसलिए मैं उसको नोट डाउन नहीं कर रहा। आगे मैं मल्टीप्लाई करके इस पावर को, फिर जाहिर सी बात है अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको उल्टाना पड़ेगा, मतलब ये ऊपर आएगा। तो 9 को नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे 3 को लिख रहा हूँ, कि 3 की पावर 2 बना रहा हूँ। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। यहाँ से कैंसिल आउट कर दें, इसको इसको भी कैंसिल आउट कर दें, तो ये बचा आपके पास 4 की पावर 2, नीचे बच गया 16, और न्यूमरेटर में 3 की पावर 3 आपके पास आ गया 27। तो इस तरह से आपके पास ये 7th पार्ट सिंप्लीफाई हो गया है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 के लिए। पार्ट नंबर 8 में भी उसने कुछ 9 की पावर चलाई हुई है, तो हम इसमें, मैं पहले 9 को 3 की पावर में लेकर जाऊंगा, क्योंकि 3 की पावर n की फॉर्म में मुझे क्वेश्चन दिख रहा है। तो मैं इसको 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 की होल पावर n प्लस 1 ओवर
थ्री की पावर एन डॉट थ्री की पावर -1, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो सारी पावर्स को अलग अलग लिख के ज्यादा इजी रहेगा। मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू की होल पावर n-1। इनकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाता हूँ। पहला स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो थ्री की पावर n, अगर मैं यहाँ इस स्टेप से पहले ही कुछ कटिंग कर दूं जो सिंप्लीफाई में दिख रही है मुझे, तो उसमें मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं, मैं अभी थ्री नहीं लिख रहा इसके लिए। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये थ्री की पावर एन, ये थ्री की पावर एन कैंसल्ड आउट। उसके बाद अभी तो मजीद मेरे पास कोई चीज काट नहीं रही, तो मैं यहाँ पे ठीक है ऐसे ही लिख लेता हूँ। थ्री की पावर टू एन प्लस टू ओवर थ्री की पावर -1 डॉट थ्री की पावर टू एन डॉट थ्री की पावर -2। आगे आते हैं। थ्री की पावर टू एन डॉट थ्री की पावर टू ओवर थ्री की पावर टू एन डॉट थ्री की पावर -3। तो यहाँ पे थ्री की पावर टू एन तो कैंसिल हो गए। पीछे क्या बचा मेरे पास, ये स्टेप मेरा थ्री था, स्टेप फोर में आ चुका हूँ। तो ये आ गया थ्री की पावर टू, इस माइनस पावर को भी ऊपर ले आऊं तो +3। तो ये बन गया थ्री की पावर 5। थ्री की पावर फोर 81 था, तो थ्री की पावर 5 जो है वो 81 मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो थ्री वन द थ्री और 243 हमारे पास आंसर आ जाता है। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अपने इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं, उसमें ये हमें क्या करने को बोल रहा है। इसने ओवरऑल तो इजी ही बनाया है इस क्वेश्चन को भी। लेट्स गो फॉर इट। फाइव की पावर एन, अब बीच में प्लस माइनस आ रहा है, तो आपने सिर्फ फाइव की पावर एन को बेसिकली कॉमन लेने के लिए काम करना है। फाइव की पावर एन डॉट फाइव की पावर थ्री -6 डॉट फाइव की पावर एन डॉट फाइव की पावर +1 ओवर थ्री की पावर टू डॉट मल्टीप्लाई करना है मैंने इसको किसके साथ, फाइव की पावर एन के साथ ही करना है, क्योंकि बाद में मैं ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन ले लूंगा और कैंसल आउट कर दूंगा। -4 और फाइव की पावर एन। फाइव की पावर एन को जब मैं न्यूमरेटर से कॉमन लेता हूं तो पीछे क्या बचता है, फाइव की पावर थ्री जो कि 125 होता है, माइनस फाइव की पावर एन कॉमन, 6 5 30 आ जाएगा ओवर फाइव की पावर एन कॉमन ले लिया इनटू थ्री की पावर टू, 9 - 4 आ गया। यहाँ पे अगर ये कैंसल्ड आउट कर देते हैं, पीछे क्या बचता है, 125 -30 बचा 95 ओवर 5 इज इक्वल टू 19। सो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ नंबर्स था जो कि आपने इंडिसेस से सिंप्लीफाई करके निकाला है। इसको थोड़ा सा फिलहाल जूम इन कर लेता हूँ क्योंकि काफी बड़ा दिख रहा है अब। अच्छा जी, अब यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अलजबरा भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें उनमें भी काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को, एक्स मुझे दिया हुआ है, 1/x भी करना है, 1/x माइनस में करना है, फिर दोनों का स्क्वायर लेके भी करना है, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर्स में लेके भी बात करनी है, पावर फोर में भी बात करनी है, और एंड पे हम ये कहेंगे कि हम x-1/x का भी स्क्वायर लेंगे। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ तक हम आज की वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जाएंगे। 3 4 5 5 क्वेश्चन टोटल हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। और आज की क्लास जो है यहीं पे हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।